السلام علیکم، آداب عرض جی ٹی ایل لسنرز، کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بخیر و عافیت ہوں، اور جناب آپ کے لیے سیریز کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں۔ اس سیریز کی فرمائش ہم سے کی ہے تابعہ عزیز نے۔ کہانی کا نام ہے ہم سے ہے زمانہ، مصنفہ ہیں سمرہ بخاری، اور آج آپ سنیں گے اس کی قسط نمبر 12۔ پچھلے برس کے سرما کی اندوہناک یادیں شبلی کے ساتھ ساتھ تھیں۔ آج بھی وہ منظر یاد آتا تو جھرجھری سی آ جاتی تھی۔ سرما کی شامیں ٹھٹری ہوئی ہوتی تھیں، مگر دن میں نرم گرم دھوپ آنگن میں اتر آتی تھی، اور اس اترتی دھوپ میں امی، تائی جان اور محترمہ دادی حضور سرسوں کا ساگ تقریباً ہر ہفتے بڑی دل جمی سے پہلے صاف کرتیں، کاٹتیں، پھر چولہے پر چڑھا دیتیں۔ ساگ ساری رات ہلکی آنچ پر پکتا رہتا، اور پھر اگلے 2 روز تک یہی نوش کیا جاتا۔ شبلی اور جوادی کا بس نہیں چلتا تھا، یا تو ساگ کو غائب کر دیں یا خود غائب ہو کر اسے تناول کرنے سے بچ جائیں۔ پورا سرما اس ساگ نے 8 آنسو رلائے تھے، اور دونوں گھرانوں کے باقی افراد نے اس سوغات کو مزے لے لے کر کھایا تھا۔ بلکہ گرمیوں میں بھی دادی سرما کا انتظار اسی لیے کیا کرتی تھیں کہ سرسوں کے ساگ سے جدائی ان کے دل پر قیامت ڈھاتی تھی۔ یہ ساگ قریبی دیہات کی ایک خاتون مسز اللہ رکھا ایک بڑے گٹھڑ کی صورت میں سر پر رکھ کر لاتی تھیں اور آواز لگاتیں، ساگ لے لو ساگ، خالص گندلاں دا ساگ، اور دادی اپنی دونوں بہوؤں کے ساتھ جھوم اٹھتیں، حالانکہ جانتی تھیں یہی آواز معصوم پوتوں پر قیامت ڈھا گئی ہے۔ خیر، اس سال تو شبلی نے پکا انتظام کر لیا تھا۔ مسز اللہ رکھا صاحبہ دن کے 1 سے 1:30 کے درمیان نزول فرماتی تھیں۔ شبلی اس ٹائم کے دوران گلی کی نکڑ پر جا کر بیٹھ جاتا، اور ادھر مسز اللہ رکھا کا جامنی کلر کا مکھڑا نمودار ہوتا، ادھر آپ توڑ کر جاتے، چلو چلو ادھر سے چلو، ادھر کسی کو ساگ نہیں لینا، میری دادی کو ساگ سے الرجی ہے، اس کی خوشبو بھی ان تک پہنچ گئی تو قیامت آ جائے گی۔ ہائے اللہ، کیسی بے ذوق عورت ہے وہ تیری دادی، بھلا کسی کو ساگ جیسی سوغات سے بھی الرجی ہو سکتی ہے؟ ہاں ہیں وہ بے ذوق، چلو پھوٹو اب یہاں سے۔ شبلی اس سرما میں اپنی اس ترکیب کی وجہ سے جوادی کے ساتھ مل کر چین کی بنسی بجا رہا تھا، اور ادھر گھر والے مسز اللہ رکھا کی راہ اب آہیں بھر بھر کر دیکھنے لگے تھے۔ آپا جان، کیا پتہ اس گرما میں مسز اللہ رکھا کا انتقال ہو گیا ہو، آپ ایسا کریں بازار سے ساگ منگوا لیں۔ یہ ظالمانہ مشورہ نانا ماموں کا تھا۔ بازار میں تو سرسوں کے نام پر مولیوں کے پتے بیچتے ہیں، جوادی نے جھٹ سے بیان دیا تھا۔ کیسی خوشنما گندلیں ہوتی تھیں اس ساگ کی، آج بھی یاد آتا ہے تو منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ دادی جان نے آہ بھری تھی، اور میری آنکھوں میں جوادی نے دکھڑا رویا۔ اماں، مولیوں والے پراٹھے بنائے بھی بڑے دن ہو گئے ہیں، جوادی کی والدہ کو مولیوں کی یاد نے تڑپایا۔ تو اور کیا، اور اس مرتبہ تو ابھی تک آلو کے پراٹھے بھی نہیں بنے۔ یہ شبلی کی امی جان تھیں۔ پراٹھے قیمے والے بھی بنائے جاتے ہیں، چکن کا ہلکا ہلکا شوربہ بھی کافی ذائقہ دار اور صحت بخش ہوا کرتا ہے۔ شبلی نے یاد دلانے کی کوشش کی، لیکن کسی نے دھیان نہیں دیا۔ فیصلہ ہوا آج آلو مونگرے شبلی کی امی بنائیں گی، سب مل کر لنچ کا لطف لیں گے، جبکہ کل کا کھانا جوادی کے ہاں تناول کیا جائے گا، اور بنایا جائے گا شلجم کا مزیدار سالن۔ یار جوادی، میں سوچ رہا ہوں ہر سرما میں خانہ بدوشوں کی طرح ہجرت کر لیا کروں۔ آہو یار، سوچ تو اچھی ہے، سبزیاں کھا کھا کے اب تو جہاں محلے میں کوئی مرغی چلتی پھرتی دکھائی دیتی ہے، میری نیت میں فطور آنے لگتا ہے۔ اور بے حد آئے تو کانوں میں تیل ڈالے بیٹھے ہو، کب سے دروازے پر بیل ہو رہی ہے؟ اب بیل کھڑکی یا روشن دان پر تو ہونے سے رہی، کمال کرتی ہیں دادی بھی۔ جوادی بڑبڑا کر اٹھا تھا۔ دروازے پر پرانا محلے دار سناروں کے خاندان کا چشم و چراغ، دادا سیٹھ کا پوتا صغیر، اور برابر میں ٹھیکیدار چچا کا آفتاب کھڑا تھا۔ کیا ہے تم لوگ کیسے آ گئے بے وقت؟ بے وقت کیا مطلب ہے تمہارا؟ بے وقت کا مطلب ہے جب وقت نہ ہو۔ اوہو، ہم کہہ رہے ہیں بے وقت کیسے کہہ دیا بھلا، یہ کوئی رات کے 12 بجے کا ٹائم تو ہے نہیں۔ اچھا آئے کیوں ہو؟ جوادی کی بیزاری عروج پر تھی۔ امی نے بلایا ہے تم دونوں کو، آفتاب نے اطلاع دی۔ نہیں بھئی، کہہ دو ان سے، وہ پیر صاحب جو شریک حیات کو قابو میں رکھنے کے تعویذ دیتے تھے، جن کا دعویٰ تھا ان کے دیے تعویذ کتے کی دم کو سیدھا کرنے میں اکسیر کا درجہ رکھتے ہیں، بیگم کے ہتھے چڑھنے کے بعد اس کام سے توبہ کر کے ٹیکسی ڈرائیور بن چکے ہیں، اور کوئی دوسرا باکمال پیر ابھی تک دریافت نہیں ہو سکا ہے۔ تو وہ تعویذ تم اماں کو لا کر دیتے تھے؟ منگواتی تھیں تو لاتے تھے، کوئی زبردستی تھوڑی پکڑا آتے تھے۔ اچھا اچھا دفع کرو، اس وقت معاملہ دوسرا ہے۔ اصل میں آفتاب کو دیکھنے کچھ لوگ آنا چاہ رہے ہیں۔ کیا خالہ نے گھر کو چڑیا گھر بنا دیا ہے؟ اچھا منافع بخش کاروبار ہے یہ بھائی۔
ओहो जवादी, कसम से कभी कभी तुम बड़ा बोर करते हो। भाई बर दिखावे के लिए आ रहे हैं, खाला ने बुलवाया है तुम लोगों को किसी ज़रूरी मशवरे के लिए। अच्छा तो यूं कहो ना, जवादी ने यहीं से खड़े खड़े शिबली को पुकारा। और जिस वक्त दोनों आफ्ताब के घर पहुंचे, खाला ठेकेदारनी खासी पुरजोश दिखाई दे रही थी। बड़ा घराना है, खाते पीते लोग हैं, इकलौती लाडली बेटी है, पता नहीं मेरा आफ्ताब कैसे भाग गया उन्हें। अब अल्लाह करे घर बार पसंद आ जाए। वैसे अभी तक आफ्ताब को सिर्फ लड़की के भाई ने देखा है, वालदैन तो अब देखने आ रहे हैं। तुम कोई मशवरा दो। किस सिलसिले में? हाँ वे किस सिलसिले में क्या भाई? इसी सिलसिले में कुछ ऐसा करो कि वो इनकार ना करें, हमारा घर बार पसंद आ जाए उनको। वैसे इस सिलसिले में पहली एहतियात तो ये होनी चाहिए थी कि इस दौरान आप हर खूबसूरत लड़के का दाखिला घर में बल्कि गली में भी बंद कर देती। हमें बुलाकर तो आपने आफ्ताब की बदकिस्मती को आवाज़ दे दी है। हाँ हाँ वे ये तो है। चलो मैं कह दूंगी दोनों शादीशुदा हैं, बल्कि बाल बच्चेदार भी हैं। ना ना, इतना आगे तक जाने की ज़रूरत नहीं। ये जो उम्र रसीदा शादीशुदा ख़वातीन होती हैं, उनमें से कुछ शर्मो हया का घोटा लगाकर पी चुकी होती हैं। मर्दों तक से मुफीद मशवरा डिस्कस करते नहीं शर्माती। ये बच्चों वाली बात तो रहने दें, हमें ना आंखों देखा तजर्बा है ना कानों सुना, बिल्कुल ही ना तजर्बाकार हैं। चलो वे बेशर्मो, कैसी बातें करते हो। अच्छा शादीशुदा तो कह सकती हूँ ना। अब आप इसरार कर रही हैं तो ठीक है। अच्छा तो ये बताओ अपने ख़ानदान में से किस किस को बुलाऊं? देखो ना, लंबा चौड़ा ख़ानदान है, जिसे ना बुलाया वही मुंह सुजाकर बैठ जाएगा। वाकई मामला गंभीर है, लेकिन घबराइए नहीं। ऐसा करें, बड़ी नंद, बड़ी जेठानी, बड़ी भावज और बड़ी आपा को बुलवा लें। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। जवादी के मशवरे को खाला ठेकेदारनी के साथ साथ सब ने ही सराहा, मगर फिर खाला बोली कि मेरी बड़ी नंद तो बड़ी खराट औरत है, ज़िंदगी भर मेरा सुख उससे कभी बर्दाश्त नहीं हुआ, रंग में भंग डाल देगी। और वो मेरी बड़ी जेठानी, उसे तो बात करने की तमीज़ नहीं, आराम से भी बात करे तो लगता है कोसने दे रही है, बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। और मेरी बड़ी भावज, तौबा अल्लाह बचाए, ऐसी फसादन है कि मिसाल नहीं मिलती, रिश्ता होने से पहले ही ख़त्म करा देगी। खाला क्यों घबराती हैं, हम किस मर्ज़ की दवा हैं, कर लेंगे उन्हें काबू। अब देखे ना, आपको अकेले दकेले बगैर बिरादरी के देख के लड़की वाले तो यही समझेंगे आगे पीछे कोई नहीं, रिश्तों के मामले में कंगले हैं। ये कोई अच्छी बात होगी भला? हाँ शिपलिट, कहता तो तू ठीक है, इसका मतलब है बुलाना ही पड़ेगा उनसे आपों को। चल वे आफ्ताब कर दे फ़ोन, आ जाएं तैयार श्यार होके। लो अम्मा, मैं खुद से फ़ोन करता क्या अच्छा लगूंगा? कितने ही फसाने बैठे बैठाए बन जाएंगे। हाँ भाई, मुझे ख्याल नहीं रहा, करती हूँ मैं खुद ही। अच्छा जवादी शिबली, ये बताओ खाने में क्या क्या रखूँ? खाला आप लड़के वाली हैं, माना कि लड़की जायदादों वाली है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि आप खुद ही को खो दें। सर उठाकर जिए, वरना फिर मौत ही अच्छी है, जवादी ने संजीदगी से समझाया। शिबली ने बात बढ़ाई, मौत का यह मतलब नहीं कि आप पंखे से लटक कर उसके पर टेढ़े कर दें या DDT खाकर चूहों और काकरोचों की ज़िंदगी बढ़ा दें। मतलब वे दफ़ा करो, खुशी के मौके पर ये क्या बकवास करने बैठ गए हो। ये बताओ मैं क्या पहनूं? वो एक शनील का जोड़ा पड़ा हुआ है मेरे पास, और मेरे पास 2-2 तोले के बुंदे भी हैं। रहने दें, शोखी जनानी नाम रख देंगे आपका, और वही शनील का सूट ना जो आप मोहल्ले की हर शादी पर पहन लेती हैं और बगैर धोए रख देती हैं। कसम से मैं और जवादी अभी कल ही बात कर रहे थे कि खाला जी के सूट में से जो बू आने लगी है, शायद डेंगू के मच्छरों को भगाने में यही मददगार साबित हो सकती है। जी, और आप हैं कि रिश्ता भगाने लगी हैं? जवादी ने अफसोस से सर हिलाया। ज़ुबान कैसे चलती है, इस वक्त तुम लोगों से काम ना होता तो बताती तुम्हें। खाला खिसे आकर गोया हुई थी। सगीर और आफ्ताब को हंसी आ रही थी, जबकि ये दोनों नहायत संजीदा दिखाई दे रहे थे। अच्छा ये तो तुमने बताया ही नहीं, उनके बैठने का इंतज़ाम किधर होना चाहिए? ड्राइंग रूम में ही कुर्सियाँ बढ़ा लूँ या हाल कमरे में बिठाऊँ? वैसे गौर करें तो हमने अभी तक कुछ भी नहीं बताया। आपने खाने का पूछा था, उसका जवाब है सब कुछ चल जाएगा सिवाय साग के। दस्तरखान पर साग, मूलियाँ, शलजम, मोंगरे दिखाई नहीं देने चाहिए। सिर्फ गाजरों की इजाज़त है, वो भी हलवे की शक्ल में। रहा आपकी पोशाक का सवाल, तो मौसम के हिसाब से खूबसूरत मगर नया जोड़ा पहन लें, और प्लीज़ नहाकर पहनिएगा, वरना फिर वो शनील वाला ही ठीक है। और कहाँ बिठाना है? मेरे ख्याल में ड्राइंग रूम ही महफूज जगह है। हाल कमरे में वो आपकी बिरादरी की ख़वातीन के नरगे में रहेंगी। कोई भी दिल जली किसी वक्त भी कोई गोलाबारी करके उन्हें बददिल कर सकती है। शाहबाज शेवे, एवें तो नहीं बुलवाया तुम्हें? बिल्कुल ऐसी ही अकल की बातें मेरी अम्मा मरहुमा भी किया करती थी। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे अम्मा याद आ गई हैं। बस जी, जब तक हम जिंदा हैं आपको आपकी अम्मा की कमी महसूस नहीं होने देंगे। आफ्ताब और सगीर ने फिर हंसना शुरू कर दिया। बेहदाए तो ये मोहब्बत है इन दोनों की। खाला की आवाज़ थरथरा रही थी।
बेगम जी, सारा घर मैंने मांझ कूच कर चमका दिया है, पूरा दिन ज़ाया हो गया जी मेरा तो। अब मैं जाऊं? घर की नौजवान सूरजमुखी के रंग जैसे दांत रखने वाली मुलाजमा फरमा रही थी। अगर जो रोज़ाना दिल लगाकर सफाई करती, कूड़ा क्रिकेट कोनों खुदरों में जमा ना करती, तो आज आधा दिन सफाई पर कभी ना लगता। ये सब तुम्हारी करनी का फल है ना हंजार मुलाजमा, शिबली ने किसी बुजुर्ग की तरह समझाया था। देखें जी, आप तो बात ना करें मुझसे। लड़की इस तरह शर्माई के दोनों ठिठक कर रह गए। कितनी बार कहा था मुझे भी कंप्यूटर चलाना सिखा दें, सारे मोहल्ले के काम आते हैं, मुझसे पता नहीं किस लिए बैर बांध रखा है। हाँ है नहीं शोखिए, दफ़ा होना। ये इतने मोजिज़ ख़ानदान के बच्चे तेरे नौकर लगे हैं क्या? काम कर लिया है तो शक्ल गुम कर, और कल एन टाइम पर आ जाना। तेरा ये जो 12 बजे दिन चढ़ता है ना, मैं बड़ी तंग हूँ इससे। खाला जी, इसका भी इलाज है मेरे पास। वो जो इसका मंगेतर है ना, फीफा उर्फ सलमान खान, वो हमारे स्कूल में सफाई करता है और 12 बजे नाना मामू से आंख बचाकर इधर इससे मिलने आता है। कल से मैं उसे 9 बजे स्कूल से भगा दिया करूँगा और इसको फिर 9 बजे बिस्तर छोड़कर सलमान खान के दीदार को आना पड़ेगा। जवादी की बात पर खाला खिलकर गुलाब हुई। अल्लाह वे माँ सदके, हर मसले का हल मिनटों में निकाल लेते हो। बस मेरा ये काम तो ज़रूर कर दो सच्ची। घर में दोपहर तक गंद पड़ा रहता है और ये चमक चलो आती है 1 बजे काम करने। चलो जी चमक चलो, तैयार रहना, कल सलमान खान आएगा 9 बजे। वैसे तुम दोनों के अगर सिर्फ दांत देखे जाएं तो बहन भाई लगते हो। हाँ ना वे शिबली जी, ऐसे तो ना बोलो, बड़ी मुश्किल से मंगेतर मिला है मुझे। अच्छा जा, हमारा वक्त ना बर्बाद कर। ठीक है, तुम दोनों भी जाओ, मैं ज़रा इन अजाब रिश्तेदारों को फ़ोन खड़का लूँ। जाएं? मेरा मतलब है कोई रोटी पानी भी तो पूछ लेता है मेहमानों को। शिबली को बेमुरवती पर सदमा हुआ। अच्छा चलो फिर खुद ही किचन में चले जाओ, मटर पुलाव बनाया है, अभी दम पर है, 10 मिनट बाद ढक्कन उठाना। इतनी देर में रायता तैयार कर लो, शाबाश। रायता मगर किस तरह? लेकिन वो फ़ोन करने जा चुकी थी। इतने बड़े ख़ानदान की इकलौती लड़की का रिश्ता ठेकेदार साहब के लड़के आफ्ताब के लिए आ रहा था। ये कोई मामूली बात थोड़ी थी। सारे मोहल्ले में ढिंडोरा पीट दिया गया था और फर्दन फर्दन मोजिज़ ख़वातीन को बर्दिखवे जैसे अहम मौका पर आने की दावत भी दे दी गई थी। उन मोजिज़ ख़वातीन में उनके घर की तीनों ख़वातीन भी शामिल थीं, मगर खुशकिस्मती से दादी को बुखार ने आ लिया। यूँ उनके साथ साथ दोनों बहुएं भी इस अहम यादगार मौका पर हाज़िरी ना दे पाईं। शिबली जवादी पेश पेश थे और बहुत मसरूफ़ भी थे कि खाने पीने की अशिया की भरमार थी। ठेकेदारनी की बिरादरी की जल कुकड़ी ख़वातीन भी तशरीफ़ ला चुकी थीं और टोली बनाए खुसर फुसर में मसरूफ़ थीं। ऐसी ही खसलत की मोहल्ले में भी कुछ औरतें रहती थीं जिन्हें इतनी अच्छी जगह से आफ्ताब का रिश्ता आ जाने पर शदीद दुख था। वो भी 1.5 इंच की मस्जिद बनाए बैठी थीं। ज़रूर लड़की में कोई ऐब होगा, एक खातून पूरे वसूख से कह रही थी। बाकी सर हिलाकर उनके ख्याल की तस्दीक में लगी थी। शिबली जवादी, तुमने तो लड़की देखी होगी, मोहल्ले की एक आंटी ने पूछा। दोनों अस्बात में सर हिला गए। कैसी है? इश्तियाक भरी कई आवाज़ें उभरी। आपको बड़ा याद करती है, जवादी ने बिला सोचे समझे यूं ही कह दिया। मुझे हैं पर अच्छा मेरे जानने वालों में से है, पर मेरे कौन से रिश्तेदार इतने अमीर हैं? हो ना हो, ये मेरी भाभी के मैके में से है। भाभी का भाई अमेरिका गया हुआ है, वही लोग नए नए दौलतमंद हुए हैं, पैर ज़मीन पर नहीं टिकते। और भाभी की वो छोटी बहन सफ़ेद बांदरी, उसी का रिश्ता हो रहा है यकीनन। कैसी मीसनी है मेरी भाभी, हवा तक नहीं लगने दी। करती हूँ भाभी को फ़ोन, करवाती हूँ उसकी तो मैं तबीयत साफ़। मीसनी चलाको। और लड़कों, तुम क्यों हर काम में आगे आगे नज़र आ रहे हो? रिश्तेदारी तो हमारी है। आफ्ताब की फूफो से बर्दाश्त नहीं हो सका, उन दोनों को घेर लिया। हम कौरमे की देग अंदर लाने लगे थे। चलें जी अब आएँ, बिस्मिल्लाह करें, इधर गेट के साथ ही रखी है। दोनों आगे बढ़ गए। बदतमीज़ ना हो तो। फूफी को सुनकर ताव आया था। खाला ठेकेदारनी ने नया वेलवेट का जोड़ा सिलवाया था, इतराई इतराई सी फिर रही थी। वैसे दिल में दुख था, अभी तक किसी ने तारीफ़ नहीं की थी। लो जी, मेरे भाई ने निकाल दिया है भाभी को घर से। खातून अपनी कामयाबी पर शादा फरहा थी। बड़ी आई कहीं से, हमसे छुपा रही थी। ये पता नहीं था उसकी चिट्टी सफ़ेद बांदरी जहाँ ब्याही जा रही है वो भी हमारे अपने हैं। अब पड़ी है मेरे कलेजे में ठंड। बड़ी बेटी ससुराल से घर रोती हुई आई होगी, सारी खुशियों पर पानी फिर गया होगा। खातून तसव्वुर करके झूम रही थी। ये ठेकेदारनी है बड़ी तेज़, देखो तो पागल से लड़के के लिए ऐसा अच्छा रिश्ता देख लिया। भला मेरे लड़कों में कौन से ऐब हैं? एक बहू मिली उल्टे तवे जैसी काली और कंगलों की बेटी, दूसरे को ये भी नसीब नहीं हो रही। ये एक मोहल्लेदारनी के दिल की फरियाद थी। वे जवादी, तू प्लेट में क्या लेकर जा रहा है? बात करते करते जो कौरमे से बोटियां निकालकर छुप छुपा कर खाते जवादी पर नज़र पड़ी तो दुख की जगह तजस्सुस ने ले ली। कुछ नहीं चाची, खाली प्लेट है, बस रखने ही जा रहा था। वे पुत्र, अल्लाह तेरा भला करे, ऐसी एक खाली प्लेट मुझे भी ला दे।
वो भी उसी की मोहल्लेदारनी थी। मेहमानों की आमद का शोर उठा, खवातीन में हलचल मच गई। आखिर देखें तो सही, कौन है पागल के पुत्र जिन्होंने इस फजूल खानदान में बेटी देने का फैसला कर लिया है। देखकर कुछ मायूसी ही हुई। बज़ाहिर तो उन्हीं जैसी आम सी खवातीन थीं, कपड़े अच्छे कीमती पहन रखे थे। एक सेहतमंद बूढ़ी खातून जिन्हें सहारा देकर लाया जा रहा था, खासा सोना लादे हुए थी। लगता है घर में किसी पर एतबार नहीं, सब पहन कर आई हैं, शिबली ने जवादी से कहा था। मुझे तो तर्ज उन सहारा देकर आने वालियों पर आ रहा है। एक तो बुजुर्ग नानी का अपना वेट, उस पर ज्वेलरी का वज़न। तौबा मेरे अल्लाह, ये हमारी बच्ची की नानी है। ऐलान के अंदाज में मेहमान खवातीन ने उन बुजुर्ग खातून का तारुफ कराया था। अच्छा, ये नानी है? जवादी ने बड़ी ही दिलचस्पी से उन्हें देखते हुए पूछा था। हाँ, मैं ही नानी हूँ, तुम क्या समझे थे? और तुम हो कौन? ए बतूल, कहीं ये लड़का तो नहीं देख लिया नन्नी के लिए? ये तो बड़ा चलता पुरजा है। अगर ये है तो हमारी तरफ से इनकार है। नानी, आपके लिए खुशखबरी है कि वो बदकिस्मत मैं नहीं हूँ। आपकी फैमिली का हिस्सा बनने वो मजलूम जा रहा है। नानी ने घूर कर आफ्ताब को देखा था। आफ्ताब ने घबराकर सलाम झाड़ दिया। वालेकुम। अच्छा, तो ये लड़का है। ठीक है, शक्ल अच्छी नहीं है, यही बात मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई है। नानी की मुदब्बराना गुफ्तगू ने दोनों को कुछ हैरान तो किया, मगर वजाहत नहीं मांगी गई। ये तो मेरी भाभी के मैके से नहीं है। लो, मैंने ऐसे ही भाभी की शिकायत लगाई। हाँ हाय, मैं अभी भाई से बात करती हूँ। फ़ौरन नंबर मिलाया गया। हाँ भाई जी, ना मुझे गलत फहमी हो गई थी। नहीं, वो भाभी के मैके से नहीं है। हाँ हाय, कितने काले हो ना आप। क्या ज़रूरत थी बात को इतना बढ़ाने की। हाय, अब आपको उन्हें मनाने उनके मैके भी जाना पड़ेगा। तौबा, बंदा पहले ही इतनी जल्दबाजी ना करे। सेल ऑफ किया। लो जी, नवा स्यापा पड़ गया है। भाभी की भाई से लड़ाई हुई है और वो मैके चली गई है। अब मेरी अम्मा को सारे काम खुद देखने पड़ेंगे। कल मेरा खाना था मैके में, अब कौन सब देखेगा? सत्यानाशी। खातून का मूड ख़राब हुआ था और वो एक कोने में जा बैठी थी। इधर मेहमानों को चाय पेश की जा रही थी। नानी, ये गाजर का हलवा तो लो ना। खातून को घर में यकीनन मलका आलिया की हैसियत हासिल थी। खवातीन बढ़ चढ़कर उनकी खिदमत में हिस्सा ले रही थी। अच्छा, गाजर का हलवा भी है, लाओ तो ज़रा चखूँ। हाँ जी, ये आफ्ताब ने अपने हाथ से बनाया है। शिबली की ज़ुबान में खुजली हुई थी। अच्छा, लड़का अमूर खानादारी में भी माहिर, ये बड़ी अच्छी बात है। अभी तो आफ्ताब शिबली की बात पर पेचोताब खा रहा था और अब नानी के रिमार्क्स के बाद फूले नहीं समा रहा था। इधर आना, मेरे पास आके बैठ। दूर खड़ा बंदरों की तरह दंदियाँ निकाल रहा है। मुखातिब आफ्ताब था। इस तबसरे पर दंदियाँ यूँ गायब हुईं जैसे अब कभी निकलेंगी ही नहीं, और जाकर नानी के करीब डरते डरते बैठ गया। गुस्से के तेज़ तो नहीं हो? अगला सवाल हुआ। इसे तो पता नहीं गुस्सा किसे कहते हैं। शिबली ने मालूमात मुहैया की। ज़्यादा बड़बोले तो नहीं हो? मुझे बड़बोलों से सख्त नफरत है। नानी को कोई ये बताए, लड़का उनके लिए नहीं, उनकी नवासी के लिए देखा जा रहा है। जवादी को परेशानी लाहक हुई। दोनों ने कुछ फासले पर बैठी आफ्ताब की वालदा मोहतरमा की जानिब देखा। वो चेहरे पर आजिज़ाना मुस्कुराहट सजाए लड़की वालों की तरफ से आने वाली खवातीन की खिदमत में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। और जब नानी ने उन्हें गोल्ड का सेट पेश किया तो बस नहीं चलता था आफ्ताब को अभी उनके साथ रुखसत कर दें। ये गाड़ी की चाबी है। वैसे तुम्हें गाड़ी चलाना तो आती है ना लड़के? नानी ने आफ्ताब को एक और खुशखबरी सुनाई थी और पूरे शरीके को जैसे सांप सूंघ गया था। हाँ है नहीं, कहाँ से मिल गए ऐसे मालदार लोग? ठहरो, इन्हें बताती हूँ। लड़का कुछ ठीक नहीं है, इसके बजाय मेरे लड़के से कर दें। एक खातून जोश के आलम में उठी थी। बैठी रहें, आपके बारे में तो उनकी राय वैसे भी ठीक नहीं है। अभी आपकी तरफ इशारे करके मुंह बना बना कर बोल रही थी। जवादी ने जोश ठंडा कर दिया। ये बुढ़ी नानी है ही फसादन। दिल की भड़ास निकालकर धप से कुर्सी पर बैठ गईं। खाला जी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। टाइम है, आफ्ताब को बर्बाद होने से बचा लें। दोनों ने खाला ठेकेदारनी को समझाना चाहा था। हाँ, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। इतने अच्छे रिश्ते भला कहाँ मिलते हैं? तुम तो जानते हो आफ्ताब ना तो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ना ही आजकल के लड़कों वाली होशियारी है इसमें। मैं तो शुक्र कर रही हूँ इतने अमीर घराने से रिश्ता आया है मेरे बच्चे का। अब तो मुझे पुट्ठी मत ना दो। देख रही हैं कितनी तेज़ खातून है। कौन? नानी? अरे उसकी फ़िक्र ना करो, ज़्यादा से ज़्यादा भी जिएगी 4-5 साल, उसके बाद चैन ही चैन। लड़के की माँ किधर है भाई? नानी की कड़कदार आवाज़ सारे पंडाल में चकराई थी। जी खाला जी, मैं इधर ही हूँ, हुक्म करें। बात यह है कि तुम्हारा लड़का हमें पसंद आया है। हम चाहते हैं आज ही मंगनी की अंगूठी भी पहनाकर यह खटराग भी ख़त्म किया जाए। लेकिन अभी हमने लड़की कहाँ देखी है? शिबली ने इस फरमाइश से घबरा कर कहा था। वे शिबली, जवादी चुप करो। खाला ने घुरका फिर नानी को मुखातिब करके बोली, हमें मंजूर है फूफी जी। आफ्ताब अब आपका है, जो जी चाहे सलूक करे। उनकी फिदवियाना मुस्कुराहट को किसी ने नहीं देखा।
सब रस्म की हसीन घड़ी में गुम थे। किसी मनचले ने डेक पर शीला की जवानी लगा दिया और समा बंद किया। रात गए नानी ने वापसी का ऐलान किया और जल कुड़ के कबाब होने वाले रिश्तेदारों ने भी शुक्र का कलमा पढ़ते हुए घर की राह ली। जवादी, शिबली, तुम्हारे घर से कोई औरत नहीं आई। अपनी दादी से कह देना मैं सुबह आऊँगी गिला करने। और ये जो आपकी बिरादरी की आ गई थी, गिला तो इनसे करना बनता है। कैसे मुंह फुलाकर सड़ी सूजी बैठी थी। दफ़ा करो, ये तो हैं ही जल कुकड़ियाँ। देख लेना, हसद की आग में एक एक करके सब जल मरेंगी। वैसे आपने आफताब के साथ अच्छा नहीं किया। चलो नानी की तो खैर है, एक आध साल में क्या नहीं हुई तो भी दिमागी तौर पर तो रिटायर हो जाएंगी, लेकिन अगर लड़की भी मिजाजन नानी पर हुई फिर आफताब का क्या होगा। वे चल चल डराओ ना मुझे। वैसे अगर लड़की दिमागी तौर पर फसादी नानी जैसी हुई तो गल ख़त्म। आफताब कुछ जायदाद अपने नाम करा के छुट्टी कर देगा उसकी। ओह, तो ये मंसूबा है। जवादी का अंदाज तारीफ़ी था। तेहोर, मुझे क्या बदमिजाजों से रिश्ते जोड़ने का शौक़ है। आने वाले दिनों में पूरे मोहल्ले में अगर कोई खबर थी तो वो ठेकेदारनी के घर की ही थी। आज गाड़ी आफताब को लेने आई है। वापसी पर लदा फंदा आया है और फूले नहीं समा रहा था। आज नानी खुद भी गाड़ी में आई हैं और आफताब को साथ लेकर गई हैं। अगर भूल चूक हो जाती थी तो खाला ठेकेदारनी खुद ऐलान कर देती थी, नया घर बनवा रहे हैं आफताब के लिए। इतरा कर इतला दी थी। मुबारक हो खाला। शिबली की सुबह अभी अभी तुलू हुई थी। मुंदी आंखों से खाला के चमकदार चेहरे को देखा था। वह जवादी किधर है? मैंने उसे भी तो खुशखबरी सुनानी है। आहो, जवादी तो आफताब की आया अम्मा रही है ना, उसे खुशी नहीं होगी तो फिर किसे होगी। चाहे जाकर इतला दें। शिबली ने करवट बदल ली थी। लोगों के बच्चे कैसी तरक्कियां करते हैं, कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। तंग गली मोहल्लों से कुशादा सड़कों वाली खुली खुली खूबसूरत आबादियों में बस जाते हैं। एक हमारे लड़के हैं, ज़ुबान चलाने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। जब से खाला ठेकेदारनी होकर गई थी, दादी वक्फे वक्फे से आहें भर रही थी। दादी, ऐसे रिश्ते मिलने कोई तो मुश्किल थोड़ा ही है। एक छोड़ 1000 मिलते हैं, शिबली ने तसल्ली दी थी। किस्मत वालों को मिलते हैं। उन्होंने ठंडे मौसम को ठंडी आह से मज़ीद बर्फीला किया था। आप कहें तो मैं नाना मामू के लिए कोशिश करूं, बल्कि आफताब की नानी सास को राम किया जा सकता है। उम्र भी मुनासिब है, दौलत भी बेशुमार है। दादी सोच में पड़ गई थी, मगर नाना मामू कहीं आसपास ही थे। अच्छी खासी क्लास ले डाली थी। इस घर के सारे मर्द बेवकूफ़ हैं, ये दादी की राय थी। अगले रोज़ खाला ठेकेदारनी सितारों के काम वाली गुलाबी साड़ी पहने, बालों में फूल सजाए चमक चलो बनी आई थी। घर का पुराना सामान बेच रही हूँ, हम तो नए बंगले में चले जाएंगे ना। दुल्हन जहेज में इतना सारा और ऐसा कीमती फर्नीचर ला रही है कि सच्ची मैं तो उस पर बैठते घबराती हूँ। आफताब कहता है, आदत डालो अम्मा, अब तो बाकी की ज़िंदगी ऐसे ही फर्नीचर को इस्तेमाल करते गुजरेगी। खाला, इतनी जल्दी ना करो, आफताब की शादी के बाद भी तो फर्नीचर बेचा जा सकता है। रहन दे जवादी, कभी तो अकल की बात कर लिया कर। ख्यालात बदल चुके थे। शादी के बाद मैं पुराना फर्नीचर बेचूंगी, बहू कबाड़िए का ख़ानदान होने का ताना नहीं देगी। ये भी हो सकता है खाली हाथ लटकाती वहाँ जाएं तो वह भिखारन के लकब से नवाज दे। वे नहीं, वे बड़ी ही अच्छी बच्ची है, बड़ी फरमाबरदार, बड़ी रख रखाव वाली, बाअदब बातमीज़। फिर ऐसे लोगों के साथ रहते तो आपको काफ़ी मुश्किल पेश आएगी। नहीं नहीं, मैंने अब काफ़ी बदल लिया है खुद को। अंग्रेज़ी भी बोलने लगी हूँ अल्लाह के फजल से। वे जवादी, सुन मेरी बात, वो आफताब के ना काफ़ी कपड़े पड़े हुए हैं। तुम तीनों का नाप भी तकरीबन एक है, कद में थोड़ा फ़र्क है। खैर, शलवारों पर नेफे डाल लेना। बस किसी रोज़ आके ना उसके पुराने कपड़े ले जाओ, बड़ा गंद पड़ा हुआ है घर में। नहीं, मतलब क्या है तेरा? ना मेरा बेटा तेरे उस आधे पागल लड़के के कपड़े पहनेगा। तो शायद भूल गई है मैं कौन हूँ। जवादी की अम्मा का खून खोला था और खूब खोला था। आहो, जानती हूँ, तरस तरस के ज़िंदगी गुजारने वाली बदनसीब औरत है। जवादी की अम्मा से आज तक कहाँ किसी ने मुँह दर मुँह ऐसी दिलेराना गुफ्तगू की कोशिश की थी। कुछ देर के लिए तो सख्ते में चली गई। जब तक सख्ता टूटा तो तब तक खाला ठेकेदारनी अगली पड़ोसन का दिल जलाने तशरीफ़ ले जा चुकी थी। वे जवादी, ये वही औरत है ना जिसे ना खाने की तमीज़ थी, ना पहनने का सलीका, पर इतना था कि इखलाक की हालत बेहतर थी। दौलत ने तो इसे दीवानी बना दिया है। जवादी ने नफ़ी में सर हिलाया और बोला, सिर्फ दौलत मिलने की उम्मीद ने वालदा मोहतरमा। आने वाला वक्त अपने दामन में पत्थर लेकर आता है या फूल, अभी ये किसे मालूम है। आहो, तू बस बैठा फ़लसफ़े बोलता रहा कर। आने दे अपने अब्बा जी को, करती हूँ बात। करें किसी अमीर घर में तेरे लिए भी बात। वालदा, रहम, खुदा के लिए रहम। आफताब का रिश्ता कराने में मेरा कोई किरदार नहीं है। मुझे ऐसी भयानक सज़ा ना दे। इस गली के एक घर में लड़की 2 मन सोना पहनकर उतरे और मैं खड़ी देखती रहूं, ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है। अच्छा, तो फिर जब तक वो लड़की इधर गली में उतर नहीं जाती तब तक आप किसी भी शर्अंगेज़ कार्रवाई से बाहर रहेंगी।
वादा करें वालदा, बिल्कुल वादा करें, पक्का वादा। चल कर लेती हूँ वादा, पर इसके बाद कुछ नहीं सुनूंगी। कुछ ऐसी ही शामत शिबली की भी आने वाली थी, मगर दादी के दांत में सुबह से जो दर्द उठा था तो अफाका होने के आसार शाम तक दिखाई नहीं दिए। यूँ शिबली चैन की बंसी बजा रहा था। यार शिबली, अब तो सोच रहा हूँ केले खाना शुरू कर दूँ। सोचने की क्या बात है, कर दो शुरू। पूछेगा नहीं कि क्यों? नहीं, क्योंकि मुझे पता है तुमने पूछे बगैर भी बता देना है। हाँ, हमेशा की तरह क्या सही है मेरे हमराज। असल में मैं चाहता हूँ गली को केले के छिलकों से सजा दूँ। जब भी खाला ठेकेदारनी शो मारने मेरे घर आए, रास्ते में ही स्लिप होकर मेरे घर के बजाय सितारों के घर तक पहुँच जाएं, या हड्डी पसली तुड़वा के अस्पताल में रौनक अफरोज़ हो जाएं। आइडिया दोनों लाजवाब हैं, बस तुम आज सब केले की फसल उजाड़ना शुरू कर दो। शिबली मुस्कुराया था, मगर केलों की फसल उजाड़ने की नौबत नहीं आई। लड़की की नानी को हैजा हुआ तो उन्होंने उसे मर्जल मौत ख्याल करते हुए जल्द शादी पर जोर डालना शुरू कर दिया था। इधर नानी सास की बीमारी की खुशखबरी सुनकर खाला ठेकेदारनी और आफताब खुशी से फूले नहीं समा रहे थे कि उनके ख्याल में भी अब नानी का बचना मुहाल था। खाला ने तो काले रंग का सूट सिलवाकर उस पर काले मोतियों का काम भी करवा लिया था, और इसके साथ साथ ज़ोरों शोर से बरी की तैयारी भी होने लगी थी। सुबह का नाश्ता करके माँ बेटा बाजार को निकलते तो शाम को लदे फंदे थके हारे घर लौटते थे। वे जवादी शिबली, तुमने तो मेरे घर आना ही छोड़ दिया है। कसम से ऐसे ऐसे जोड़े बनाए हैं बरी के, मोहल्ले वालियाँ देखेंगी तो हैरान रह जाएंगी, जल जल कर मर जाएंगी। आजकल उन्हें जलाने और मर जाने के तसव्वुर से ही बड़ी मुसर्रत हासिल होने लगी थी। आफताब की दुल्हन को भी साथ ले लिया करें, मेरा मतलब है वो अपनी पसंद से खरीद ले तो ज़्यादा बेहतर है। आखिर इस्तेमाल तो उसी को करना है। लो भला, उसे क्या लेके जाना, उसे तो कपड़ों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं। जेवर अलबत्ता बहुत पसंद है, सुना है मुझे भी नानी सास शादी वाले दिन पूरा सेट सोने का चढ़ा रही है। मैंने सोचा मैं पीछे क्यों रहूं, मैंने भी वो गांव वाली ज़मीन का टोटा बेच दिया है। 2 सेट भारी वाले कड़े चूड़ियाँ सब बनवा लिए हैं बहू के लिए। जितना भी दे दूं, आना तो वापस मेरे ही पास है ना। वैसे भी तो पूरा मकान आफताब के नाम लगा रहे हैं। आप लोग कम ही गए हैं उनके घर, वही चक्कर लगाते रहते हैं। शिबली के कहने की देर थी, खाला बुरा मान गई। ना, अब बेचारे ऐसे भी कौन से चक्कर लगाते रहते हैं, कभी कभार आफताब को लेने आ जाती है लड़की की माँ तो कभी नानी। और मैं जाऊँ भी कैसे, वो घर में थोड़ा ही रहती हैं। तो क्या क्लब में बुकिंग होती है उनकी? जवादी ने कहकर जुबान दांतों तले दबा ली कि खाला अजद बुरा मान गई थी। तुम सब मोहल्ले वाले एक जैसे हो, किसी की खुशी में खुश हो ही नहीं सकते। वो औरतें भी बिजनेस करती हैं, मसरूफ़ रहती हैं। साथ ही वजाहत भी कर दी, फिर तो आप आफताब को अमूर खानादारी में ताक करने की सोचें। आफताब को क्यों, मैं जो हूँ, मैं खुद अपनी बहू के लिए खाने बनाया करूँगी। सब पकाना आता है मुझे, उन्होंने फ़खरिया बताया। वो जी, आफताब की अम्मा का बस नहीं चलता, घर के बर्तन भांडे सब बेच के दुल्हन के जेवर बनवा दे। और तो और मेरी तनख्वाह भी मार ली है। इस वक्त खाला की चमक चलो मुलाजमा दादी के पास बैठी खबरें सुना रही थी और दुखड़ा भी रो रही थी। तेरी तनख्वाह भी दबा ली, देख लेना खुदा का कहर नाजिल होगा। आहो, ये तो बड़ी अल्लाह वाली है ना जो इसकी तनख्वाह दबाने से कहरे खुदाबंदी नाजिल होगा। जवादी मुस्कुराया था। तो और क्या, एक ही बात है, उन्होंने दबा ली या तूने सलमान खान पर लुटा दी। शिबली को जवादी से इत्तफाक था। ये सलमान खान कौन है? दादी को मालूमात में इजाफे का शौक चढ़ा था। इंडियन फिल्म एक्टर है, जवादी ने बताया। चमक चलो इस अरसे में दांतों की नुमाइश के दौरान शर्माने का शानदार मुजाहरा भी बराबर करती रही थी। इंडियन फिल्म एक्टर पर तनख्वाह लुटाती है, पर कैसे? कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाएं? 100 तरीके हैं रकम बर्बाद करके महीना कर्ज पर गुजारने के। फिटे मुंह तेरा, तो दुश्मन मुल्क के बागड़ बिल्ले पे फिदा है। दादी नाराज़ हुई थी। मखौल कर रहे हैं जी, ये जी मेरे उनको सलमान खान बोलते हैं। ये नाम भी इन दोनों ने ही उसका रखा है, वरना माँ प्यो ने तो फीका रखा है जी उसका। बात हो रही थी आफताब के अमीर व कबीर ससुराल की। जवादी ने जान बचाने को याद दिलाया। गोली मारो आफताब के ससुराल को। ये बताओ, इतने दिनों से वो साग वाली कहीं नज़र आई कि नहीं? कौन साग वाली? वो जो पिंड से साग लेके आती है, वो तो जी। चलो उठो, चल के बर्तन धो, अगर ये पसंद नहीं तो मेरे कपड़े इस्त्री करो, और ख़बरदार जो दोबारा से कुछ बोलने की कोशिश की। शिबली साहब, आप नाराज़ क्यों हो रहे हैं? मैं तो ये बताने लगी थी कि वो साग वाली, वो देख जाके पानी वाली मोटर जल जल के अब तो कोयला होने लगी है, और मेरा ख्याल है तो इस्त्री का प्लग लगा के इधर आ बैठी है। अच्छा जी, पता नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं है। खैर देख लेती हूँ। हाँ देख जाके, और अब दोबारा से इधर आने की लोड़ नहीं है, कम मुकाओ ते घर न जाओ। हाँ तो दादी, वो बात यह है कि आखिरी खबरें आने तक वो साग वाली जिस खेत से साग चुरा कर लाती थी, उस खेत को आग लग गई थी घर के चिराग से।
सुना है ऐसी आग लगी कि सरसों के साग से सरसों का तेल निकल आया था। आजकल वो यही तेल बेचती है। दादी ने संजीदगी से शिबली की बात सुनी, फिर फरमाया, ना पर सरसों को आग लगने से तेल किस तरह निकल आया है? तेल सरसों को आग लगा के थोड़ी निकालते हैं। ये जदीद तरीका है दादी, सुना है उससे तेल की दुगनी मिकदार हासिल की जा रही है। जवादी ने तसल्ली कराई। आय हाय, कैसा जायकादार साग होता था। दादी को दिनों दुख रहा। आफताब की शादी के कार्ड खाला ठेकेदारनी ने मारे खुशी के फूली सांसों के दरमियान बांटे थे। अरे इतने बड़े लोग, हमारा तो ख्याल था शादी का फंक्शन किसी बड़े होटल में होगा। अक्सरियत ने कार्ड लेकर यही कहा था। इस बात का जवाब खाला ठेकेदारनी के पास नहीं था, इसलिए सिर्फ बुरा मानने पर इक्तफा किया। वैसे ये सबको बताया था उन लोगों को शोर शराबा पसंद नहीं, इसलिए बारात में सिर्फ दुल्हा दुल्हे की वालदा ही तशरीफ़ ले जाएंगे। हाँ, जब मैं दुल्हन को अपने घर ले आऊँगी फिर सब आ जाना देखने। लो ये क्या बात हुई खाला, बारात तो लड़के वालों की ताकत होती है, उनकी मजबूती का इजहार होता है ना। वहाँ क्या रेसलिंग होनी है जो ताकत और मजबूती का इजहार ज़रूरी है? अजीब मोहल्ले वाले हैं, किसी की खुशी में खुश ही नहीं होते। मेहंदी के रोज़ सारा मोहल्ला मदऊ था। ठेकेदारनी ने उन्हें ढोल बजाने को कहा था, मगर दादी को ये बात पसंद नहीं आई थी कि ढोल वगैरह तो मिरासी बजाते हैं, तुम कहाँ से मिरासी हो? खबरदार जो ढोलक के करीब भी गए। ये जो लच्छो बांदरी इतराई इतराई फिर रही है ना, आप ही बजाए ढोल। खैर मोहल्ले की लड़कियों ने ढोलक संभाल ली थी। रात गए तक रौनक लगी थी। खाला, दुल्हन का सामान कब आएगा? किसी ने पूछा था। सामान इस चूहेदान में क्यों आने लगा? इतनी बड़ी कोठी है लड़की की, उधर ही सजाया है सारा। तो हम कैसे देखेंगे खाला? औरतों को सदमा हुआ था। मैं भी तो उधर जा रही हूँ, फिर बुलवाऊंगी, तुम सबको तसल्ली दी थी। आफताब में अब काफ़ी एतमाद देखा जा सकता था और गरूर की झलक भी उसके हर हर अंदाज में थी। मेहंदी का फंक्शन रात गए तक इख्तिताम को पहुंचा। सुबह देर तक सारा मोहल्ला सोता रहा। पता ही नहीं चला कि खाला आफताब के साथ मुख्तसर तरीन बारात लेकर कब रवाना हो गई। शाम को अकेली घर आई थी कि आज आफताब की सुहाग रात थी। वो उधर दुल्हन के घर में ही रुक गया था। हस्ब दस्तूर मोहल्ले वालों ने इस बात को सरासर गलत करार दिया था और खाला ने सख्त बुरा मानने के साथ साथ उन्हें गरीब गंवार औरतों के लक़ब से नवाजा था। तुम छोटे छोटे घरों में रहने वाली हैं, तुम्हें क्या पता ज़माना कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। चलो आफताब तो दुल्हन के बंगले में पहुँच गया है ना। जवादी ने जैसे इस बात पर सुख का सांस लिया था। वैसे उस लड़की की नानी बड़ी खरांट सी है, एक औरत ने तबसरा किया और खाला चिराग पा हुई। नी बस करनी, ऐसे ही बेचारी के पीछे पड़ी रहती है। कुछ लोग ऊपर से अखरोट की तरह सख्त, अंदर से नरम होते हैं। वो नानी भी ऐसी हैं। शादी के रोज़ बिछ बिछ जा रही थी, बता रही थी मेरे लिए पूरे 6 तोले का सेट बनवाया है। जल्दी में उस रोज़ लाना भूल गए थे, अब कह रही थी जल्दी मिल जाएगा मुझे। अच्छा तुम लोग अब चलो, सुबह वलीमा है, तैयारियां करो जाके। सुनो, अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आना, दुल्हन वालों के सामने बेइज्जती ना कराना मेरी। मगर वलीमा के फंक्शन की नौबत नहीं आई। आफताब साहब आंखों में आंसुओं की बरसात लिए अकेले ही सुबह सवेरे मुंह अंधेरे लौटे थे कि लड़की और उसकी नानी मोहतरमा सब लूट लाट पता नहीं रात के किस पहर फरार हो गई थी। हाय मेरा लाखों का जेवर, मैंने तो बंगले के लालच में पुरखों की ज़मीन बेच दी थी। घबराओ नहीं खाला, ये भी शायद नए ज़माने का अंदाज़ है। शिबली की बात पर वो दहाड़े मार मार कर रोने लगी थी। हाय कैसे पत्थर पड़ गए थे आंखों पर। उनकी झूठी बातों पर एतबार किया मैंने। चौथे दिन अभी वो हालत सोग में थी कि पता चला बंगले का मालिक मकान का किराया वसूल करने उनके दरवाजे पर आया है। वे जवादी, वे शिबली, कुछ करो, पता लगाओ उनका डायनों का, मेरा लाखों का जेवर ले उड़ी हैं। निकाह नामा भी उनके पास है, किसी वक्त भी कुछ कर सकती हैं। आफताब साहब भी अब कांप रहे थे। ये सब तुम्हारे लालच का नतीजा है। तुम माँ बेटे लालच में अंधे हो रहे थे। ये मेरे बच्चे देखो कैसे साबिर और शाकिर हैं, बिल्कुल मुझ पर पड़े हैं। दादी की बात पर जो मुस्कुराहट उमड़ी वो दोनों उसे रोक नहीं सके। एक ही तरीका था, यहाँ से शक्ल गुम कर ली जाए और घर के बाहर की राह ली जाए। वैसे भी मिसेस अल्लाह रखा की आमद का टाइम होने को था। जी, तो इस सीरीज़ की एक और कहानी अपने इख्तिताम को पहुंची और बड़ी ही कोई ठंडी सी स्टोरी थी। इस बार जो है वो मज़ा नहीं आया। जैसे जैसे आगे सीरीज़ बढ़ रही है तो कहानियाँ जो है वो कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। खैर, अब आगाज़ किया है तो इसे मुकम्मल भी करेंगे। मेरा ख़्याल है कि इसके 2 ही पार्ट मज़ीद बाकी होंगे, तो जल्द ये सीरीज़ भी अपने इख्तिताम को पहुँच जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।